Hello. Yes, are you able to hear me? Yeah, ma'am. Good evening. Yes, very much. So what happened? You are not able to respond. No, actually, I am in mute mode. That's Okay. right. Okay. So let us wait for another person who wanted to join. Sure. I just came from office. I will also take 5 minutes to catch up. Okay. So hi everybody. So thank you for joining this call. And today's topic will be how to improve our communication skill so as to attain our leadership growth. So I take roughly 90 minutes. So hope that is okay with you. Thank you for your interest in this topic. So maybe I can share the screen so that you can better. So are you able to see the screen? Yes, ma'am. So as both of you expressed interest about communication skills, so that is why I thought I should address both of you. And I'm live streaming it to the YouTube channel also. Sandeep, have you subscribed to my YouTube channel as yet? Yes, subscribed. YouTube, right? So it is streaming live also there. So it is communication fluency. But what you don't know, you know, there is lot of things to communication. It is just not speaking English, right? Communication is like expressing yourself to another person, no matter what language. If that is the first myth you should take out from your life. Anything to say about that? Even if you speak in Hindi or any language, French, Russian, your local language, your mother tongue, anything, but you should be able to communicate with the other person. Is that okay? That's the first thing should come to your mind. So keep responding, right? You can respond in the chat also if you are in mute. So is that okay? Yes. So that is the first thing. So you can write in the chat, Sunny, Yogesh and Sandeep, right? If you are on mute.
Are you able to write in the chat? Yes, yes. Yeah, okay. So again, you are saying yes. So how come you are able to write? I should be able to. No, ma'am. Ma'am, you just ask whether you are able to write or not. So you can write no in the chat itself. Yes, you are able to. You can say yes in the chat, right? Yes, that is the way. Okay. So let me go to the screen right now. So the first question I would ask is, communication is essential. Both of you agree, right? Yes. And do you think that if you don't take action right now, you will take precious time, right? How is your communication skill right now? Can you write in the chat? Can you write in the chat as to what is your communication skill right now? Low, not effective. Why do you think, Sunny? You can unmute now and speak. Actually, all of you can actually turn on your video if you can. And we can speak. Yes, Sandeep, you can also turn on your video. Sunny, you can have your video on, yeah. Yes. Sandeep, also you can turn on your video. Yes. So why do you think so? If it is low, there must be some reason ना किसी ने बोला होगा. Somebody must have told you that your communication skill is not good. और आपने या फिर आपने खुद से सोच लिया कि it is low. There must be some reason from where you must have concluded that your communication skill is not okay. Right? People ignore me during communication or discussing on any topic. Okay. Ignore means किसमें? जैसे for example, can you give one example? एक describe कर सकते हैं like how they have ignored? I repeat my or strongly put my point of view during discussion, but they don't reply or neglect during discussion or any topic. Okay. They don't reply. They don't. Okay. So right now I'll share my screen. I'll show you if those are the things happening with you. If that is the case, then we can actually figure out. Are you able to see? Share. Yes, able to see. Okay. So what problem is happening now? So you told. So yes. So first is they don't reply. I'll keep on writing so that it will go inside your head also. Na? Sunny, they don't reply. Yes, ma'am. And the second thing is they ignore. Sandeep, you have any incidents? Why you think your communication skill is average? Ma'am, actually, I think actually I'm working in sales team. So the business numbers are not met. That's why I thought के communication skill थोड़ा कम है. Nothing apart from that. Business is poor, right? Okay. Yes. किसी ने बोला है कुछ? Somebody has pointed out कि आपका communication skill is poor. नहीं, to be honest, घर में बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं हम लोग समझ नहीं पा रहे. Very poor communication. बाकी ऑफिस में तो yes, exactly. These
this also happened with me. My missus always tells ke your communication skills is very poor. She is also working woman, so that. Okay. See, unclear communication. See, ये भी हो सकता है ना कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, they are saying something, but it is not the exact thing at workplace. आप जो कि आपको फैमिली में कोई बोल दिया एंड किसी ने आपको सीरियसली नहीं लिया, मे बी दैट इज व्हाई यू हैव टेकन दैट परसेप्शन टू वर्क प्लेस. कुछ और भी हो सकता है. लेट अस फिगर आउट कि क्या हो सकता है. ये 4 में हमने लिख लिया, राइट? अब देखो, इसको करने के लिए मतलब ये तो प्रॉब्लम हो गए, इसका सोल्यूशन जरूर आपने ढूंढा होगा. यू मस्ट हैव फाउंड आउट व्हाट सोल्यूशन. सो व्हाट आर द सॉल्यूशन सो फार यू हैव फाउंड आउट? क्या क्या करने की कोशिश की अब तक? सनी बताए पहले. हाँ, yes, Sandeep, you can go ahead. Yes, sir. To make notes and to be specific. To make notes and be specific. हाँ, yes. ये काम किया अब तक कि नहीं किया? Whenever yes, already. Actually, जब मैं मेरा टीम का कॉल ले रहा हूँ तो मेरे दो सेम प्रोफेशन है, तो मेरा मैसेज भी सुनता है, तो वो उनको बोलना है कि आप ऐसे बोलोगे तो वो समझ में नहीं पाएंगे. सो दैट थोड़ा बहुत मुझे लगा कि कोई तो बोल रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कि वो बोलने से मैं किया हूँ, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ. अभी डायरी में लिख रहा हूँ 5 से 25 पॉइंट्स के ऊपर ही स्पेसिफाई करना है, और उसको पर डे व्हाट टू बी डन और क्या करना है उसके ऊपर ही फोकस करता हूँ. तो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसके ऊपर. और कभी कभी सेल्स में क्या होता है ना, बहुत सारा चीज मिक्स हो जाता है, नंबर करो, इंश्योरेंस करो, ये करो, वो करो. तो अभी क्या ना, तो स्पेसिफिक, अभी मैं स्पेसिफिक पॉइंट आज का दिन में इसके ऊपर ही फोकस करना है. सो दैट आई मेंशन दैट आई मेक नोट्स एंड बी स्पेसिफिक. अच्छा, ठीक है. दूसरा कुछ? योगेश, सनी, योगेश. One my colleague advised me, काम से काम इतना ही बात करना, ज्यादा बात नहीं करने का. तो यही सोल्यूशन आपने लिया. काम से मतलब रखो, काम से मतलब रखो, यही बोला ना? यस मैम. बट सो यू टुक हिज एडवाइस थिंकिंग कि उतना ही बात करना चाहिए जितने मतलब की बात हो. सो आर यू एबल टू कन्विंस स्टिल? मतलब इससे तो काम हो जाना चाहिए. बॉस ने कुछ पूछा, लाइक से सनी डिड यू डू दैट, किया हो तो बोलेंगे यस, क्योंकि काम से काम रखना था, और नहीं किया है तो बोलेंगे नो, राइट? इज दैट सो? This formula is not fully satisfied with. हाँ, तो बोलिए ना, वही पूछ रही हूँ कि काम से काम मतलब रखो. मतलब कैसे आप डिसाइड करते हैं? हाउ डू यू डिसाइड कि हाउ डू यू डिसाइड दैट व्हाट इज एनफ और नेसेसरी या फिर सफिशिएंट है? आप समझते हैं ना ये 3 वर्ड का मतलब? एनफ, नेसेसरी, सफिशिएंट. जब काम से काम मतलब रखो बोलते हैं, देन यू नीड टू नो. अरे लिखो मत बेटा, बाद में ये आपको मिल ही जाएगा. आप तो YouTube सब्सक्राइब किए हुए हैं ना? आई विल अपलोड दिस. यस. बट फोकस ऑन द आंसर सो दैट आई वुड नो. डू यू नो द आंसर? मतलब ये 3 वर्ड्स आपको पता है ना? एनफ क्या होता है, नेसेसरी क्या होता है, सफिशिएंट क्या होता है? राइट? तो ये आपको पढ़ना है, राइट? यू शुड नो कि कहाँ पे क्या. हर जगह पे नहीं होता है, बिकॉज आपके कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन सेवरल प्लेसेस. फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, यहाँ पे है, ऑफिस में है, क्लाइंट्स के साथ है. सो मेनी वेज योर कम्युनिकेशन हैज टू बी. हर जगह पे एक फॉर्मूला नहीं बैठेगा, राइट? तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एनफ, व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज सफिशिएंट. ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाई डिडंट वर्क आउट? अभी तो आपने ये अगर कर लिया तो हो गया होता, स्टिल आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ.
तो अब बताओ कि जो भी आपने किया उससे क्या इंसाइट, मतलब क्या लर्निंग हुई आपकी? कि सनी पहले बोलो, देन संदीप कैन गो. उमेश, या उमेश, हाय, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. Yeah, little challenge. My daughter is not well, but it's okay. I thought I'll just join and take some money. Yeah. So if you are busy, otherwise you can leave also. No problem. No, it's okay. आप बहुत अच्छा से समझाते हैं. I'm enjoying. Okay. Thank you, Umesh. I may be on mute and not on video. I hope that's okay. Yes. Fine. Thank you. Because Sunny and Sandeep, they wanted me to speak to them on communication skill. That is why I gave a call कि बाकी सब किसी को भी जरूरत है तो आ जाए. नहीं, really appreciate your effort. Thank you. Thank you, Sunny and Sandeep, for bringing this up. Yeah. So अब तक क्या नहीं Sunny and Sandeep, back to you. तो अभी बताओ कि अभी तक तो आपने ये ज्ञान ले लिया अपने दोस्तों से, राइट? अब क्यों नहीं सोल्यूशन मिला भाई आपको? कहाँ पे फेल हो गए आपको लगता है? अकॉर्डिंग टू यू, राइट एंड रॉन्ग नहीं है. Whatever you say, I'll write. Ma'am, this is Sandeep. Actually, there might be few challenges like environment or any specific channel. Environment, yes, and हो सकता है कि वो लैंग्वेज में कुछ उनका अंडरस्टैंडिंग कम हो, आई थिंक. अच्छा, तो नाउ दिस इज अनदर अच्छा, दिस इज अनदर फाइंडिंग. ये तो बहुत अच्छा है. देखिए, कम्युनिकेशन स्किल आपके साइड में ही खाली नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ए लिटिल, क्या बोलते हैं, लिटिल लेस. दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट. समझ में आया? कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली फ्रॉम योर साइड, अगले साइड से भी हो सकता है. एंड यू नो, फनी थिंग इज द अदर साइड का जो होता है प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा सुपीरियर प्लेस में अगर होते हैं ना, तो देन वो थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर नहीं है. अंडरस्टैंड? यस. बॉस अगर है, बॉस को अगर आपके टाइप के कम्युनिकेशन से वो फेमिलियर नहीं है, देन उनको इजी होता है बोलने के लिए कि यार क्या समझाता है, क्या बोलता है, कुछ समझ नहीं आता. देन यू टेक ए नेगेटिविटी विद इन योरसेल्फ कि वही है ही नहीं मेरा सही. तो जितना रहा सहा भी कॉन्फिडेंस होगा ना, वो गया. अभी क्या करना चाहिए मुझे बताएं? ऐसा अगर सिचुएशन हुआ होगा, मुझे लगता है ये कई बार ही होता है. कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट जो है. तो मैम, बैरियर से अगर पता चलेगा तो उसको ओवरकम करने के लिए ही सोचेंगे. बैरियर्स तो ये पता चला ना आपको, क्या कैसे ओवरकम किए? अभी तक तो आप सोच रहे थे कि बॉस ने जो बोला सही है, ओवरकम तो किए ही नहीं. वही बोल रहे हैं कि अभी तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि सोल्यूशन, मैं जिसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसका ये प्रॉब्लम है, शायद इसलिए वो मतलब प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. तो वो फिर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. हाँ, तो फिर आपने जो बोला, इससे मैंने लिखा कि नॉट फाउंड द सॉल्यूशन सो फार. आपने सोल्यूशन आपको मिला ही नहीं है अभी तक, क्योंकि आप श्योर नहीं हो. And the fourth thing is no confidence, no self confidence. अगर आपको मिल भी जाएगा तो भी आप नहीं करोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा, राइट? अभी देखिए, ये जब ये सारे जो कम्युनिकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये खाली 1-to-1 एक ही जगह पे नहीं होता. आपका इतने सारे एस्पेक्ट पे प्रॉब्लम हो जाता है, वो इफेक्ट करता है आपके लाइफ डिसीजन को. मैं आपको बताऊं कि कोई डिसीजन ले रहे हो क्या, योगेश है कि 5 दिन तक वो देखता ही नहीं मैसेज, देखता है बोलता ही नहीं. व्हाट इज दैट? डिसरेस्पेक्ट होता है भाई. सो
आपने कुछ नहीं बोला, राइट, आपने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, बट व्हाट मैसेज आई एम गेटिंग कि डिसरेस्पेक्ट है, क्योंकि थोड़ा आपको मैं पहले से जानती हूँ, एक बार मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी, सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दैट परसेप्शन कि यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट है। और वो कैसे मेरे दिमाग में बैठ गया, 2 बार और भी मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की, चलो एक बार नहीं हुआ, बंदा नहीं देखा होगा, उस बार भी ऐसे था। जो बोलते हो वो रखते नहीं हो, यू आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट टू कीप योर वर्ड्स। सबसे घटिया बात यही है, मतलब आप हो, मैं हूं, कोई भी है, हमारे में जो जब इंटीग्रिटी नहीं होता है ना थॉट्स एंड एक्शन की, वो घटिया बात हो जाती है। सामने वाला अपने खुद भी वही गड़बड़ करता हो, फिर भी अगर आप कर रहे हो तो बोलेगा। अंडरस्टूड? वर्क डिसीजन नहीं ले पाते। Yes, yes. कंपटीशन अगर हो रहा है आपके साथ किसी और का, देन ऑल्सो इफ द अदर पर्सन हैज समहाउ ए लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग बैठा, ऐसा भी हो सकता है ना, कम्युनिकेशन उसका भी आपसे भी पुअर हो, बट ही वुड हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग विद दैट पर्सन, तो भी आप पे वो भारी पड़ेगा। आप बोलेंगे उसको भी तो नहीं आता यार, मतलब मेरे से भी घटिया इंग्लिश बोलता है, मेरे से भी घटिया लिखता है, उसके रिपोर्ट्स काफी घटिया होते हैं, फिर भी उसकी बात ही बॉस सुनता है। ये होता है, नहीं होता है? यस मैम। हाँ, ये होता है। सो देन हाँ, ये अभी किसी ने बुलाया, ये गया योगेश, देखा है ना, देखा मैं आपको पूरा पूरा अच्छे से पकड़ती हूँ। सो व्हाट एवर आई से ना, ये आपका पैटर्न है, इट इज नॉट दैट कोई मैं जादू चला रही हूँ, दिस इज योर पैटर्न योगेश, राइट? सो फोकस ऑन दिस थिंग कि कोई भी आता है जाता है, ये टाइम में वो डिस्टर्ब करेगा, तो उनको बोल दो कि फॉर 90 मिनट्स दे डोंट हैव टू डिस्टर्ब यू, राइट? किसका किसका इसमें नुकसान है? आपका है ना। एनीवेज, एंड देन कम्युनिकेशन की तो बात हो गई। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट इंग्लिश, इट इज अबाउट हाउ यू put your words across, whatever you are to say, वो आप कैसे बोल सकते हैं। हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए, अपने मदर टंग में बोलिए, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी में भी बात कर सकते हैं, बट यू शुड बी एबल टू टेल व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू से। किसी भी लैंग्वेज में बात करो, वही होता है कम्युनिकेशन स्किल। कुछ तो बिना बात किए भी आप कन्वे कर सकते हैं। हाउ? बॉडी लैंग्वेज से। आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं 2008 में मेघालय में गई थी, लास्ट टाइम भी बोला था, आपने सुना होगा। सो मेघालय इज ए प्लेस जहां पे स्ट्रेंजर्स को अलाउ नहीं करते अपने घर में, और अगर आप अगले स्टेट से हो, किसी और स्टेट से हो, तो आपको बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगे। बट आई वर्क देयर फॉर 2 years। आज भी अगर आप जाओगे मेघालय में, शिलोंग के 50 किलोमीटर दूर के बाद आपको कोई होटल नहीं मिलेगा। होटल भी, रेस्टोरेंट भी आपको बहुत गिने चुने मिलेंगे। और मैं ईस्ट खासी हिल्स और वेस्ट खासी हिल्स के इंचार्ज थी, तो दैट इज लाइक 100 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग। और मैं एक बार अगर गई, और वहां पे रास्ता भी इतने सारे, कम्युनिकेशन इतना घटिया है कि एक बार 80 किलोमीटर जाने के लिए आपको 4-5 घंटे लगते हैं। तो जाहिर है कि मैं एक उसी दिन तो वापस नहीं आ सकती ना काम करने के लिए, तो मुझे रुकना पड़ता। मैं 4-5 दिन रुकती और आती। अब बताइए मैं क्या रास्ते पे खड़ी रहती? जबकि आपको बोला गया है कि स्ट्रेंजर्स को दे डोंट एक्सेप्ट, तो कैसे मैनेज किया मैंने? डेफिनेटली मैं किसी के घर में रही बाबा, राइट? यस, नो? यस मैम। हाँ, कैसे? वो खासी लैंग्वेज बोलते हैं, खासी लैंग्वेज मुझे नहीं आता। सो यहाँ पे तो कम्युनिकेशन का भयंकर प्रॉब्लम हो गया रहता। हाउ डिड आई मैनेज? कोई बोल पाएगा? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग।
बॉडी लैंग्वेज भी एक काम करता है. सो व्हेन योर इंटेंट इज प्योर, द अदर पर्सन गेट्स कम्युनिकेटेड, राइट? दैट इज हाउ आई मैनेज्ड. कोई भी मेरे घर, उसके घर में मुझे अलाउ करता था, वो किसी और को नहीं किया. कोई मेरे जगह पे 2 साल बाद कोई और गया था, तो उनको बोल दिया गया 6 बजने के बाद अगर आप बाहर मिले तो आपके साथ जो होगा हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है. मतलब इतनी खतरनाक स्थिति वहां पे थी. कभी मुझे कोई नहीं बोला, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. जैसे हिल स्टेशन में जाके रहते हैं ना आराम से, 2 साल हम रहे कंपनी के खर्चे पे, राइट? सो एक बॉडी लैंग्वेज होता है. तो ले दे के क्या है कि इट इज योर इंटेंशन, आपका हार्ट क्या बोलता है. इफ इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव ऑलवेज है, उसके भले के लिए भी है. आप क्या लैंग्वेज बोलते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो इट इज अबाउट योर हार्ट एंड माइंड, थॉट्स ऑल्सो. उसके बाद देखिए कॉन्फिडेंस आपका. लोगों को, वही मेघालय के लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ही जगह जाके, वहां पे उनके घर में जाके रहने का. डर लगता था. मुझे बोलते थे कि आपके जान पहचान है क्या? मेरे जान पहचान मेघालय में कैसे हो सकते हैं भाई? तो दिस इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इन व्हाट? कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी. मैं इंसान हूं, आप भी इंसान हो, तो अगर मैं आपको कुछ नुकसान नहीं करने वाली, तो आप मेरा कोई नुकसान नहीं करोगे. दिस इज द कॉन्फिडेंस, राइट? इट टेक्स सम डिसिप्लिन टू कल्टिवेट दिस विदिन. नहीं तो आपको हर कोई डराएगा, आप हर किसी से डरोगे. कलीग्स, वर्क प्लेस में कलीग्स तो झगड़ा करते ही हैं. ये बोला, वो कुछ बोला, आपको पता भी नहीं है कोई किस लिए बोला. जो कलीग आपको दो कलीग, आपके 2 कलीग के बारे में एटलीस्ट मैं जानती हूँ अभी, बहुत ही घटिया आपको सजेशन दी, एंड यू डिडंट नो. आपने तो सोचा कि मेरा भला ही चाहता होगा इसलिए बोला है, राइट? बट वो जो भला और इनोसेंट वाला जो होते हैं ना सजेशन, उससे आपका कॉन्फिडेंस का मतलब उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. लर्निंग ए स्किल. आप वर्क प्लेस में, आपको भले ही कोई कम्युनिकेशन की स्किल ना हो, इफ यू आर लर्निंग एवरी डे, आपसे हर कोई डरेगा, आपका बॉस भी डरेगा. यू नो, आपको ये ट्रिक पता था? जो सीखता है उससे हर कोई डरता है. अगर डराने का ही आपको है कि आप दबदबा कैसे बनाए रखें अपना, देन स्टार्ट लर्निंग. और वो लर्निंग का मतलब क्या बोलते हैं उसका, you should not play a trumpet about कि मैंने ये सीख लिया, आज मैंने ये सीखा, वो मैंने सीखा. ये किसी को बताने का नहीं है. जो बंदा लर्नेड होता है उसके पर्सनालिटी से झलकता है, राइट? सो दैट लर्निंग हैज टू बी विद इन. हमेशा सीखो. और मुझे जो बहुत ही ज्यादा हेल्प किया, बहुत सब कुछ आप करोगे फिर भी कभी कभी इंसान है, गलती हो जाती है, हर किसी से होती है, कितना भी सीखो, क्योंकि आपका माइंड हमेशा एक जैसा थोड़े ही रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर. तो क्या होता है कि आपको जब आप नीचे पे हो, थोड़ा सा डाउन हो किसी वजह से, तो बहुत सारे फोर्सेस हैं, यही सारे जितना मैंने अभी तक सिखाया, ये सारे कोई, इसमें से कोई भी आपको नीचा कर देगा. और सो हाउ डू यू सर्वाइव दैट? ये उनकी गलती नहीं है, ये सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस का नेचर है कि जब आप दबते हैं तो आप और दब जाते हैं. सो हाउ डू यू मैनेज दैट? तब आप एक बिग विजन रखिए, इतना बड़ा विजन. संदीप, आप सुन रहे हैं? संदीप
Sandeep, you are there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sunnam. So when you are down and you are feeling out, down and out, 2011 का वर्ल्ड कप किसी ने देखा है आपने, जो इंडिया जीता था? 11 फाइनल का वर्ल्ड कप मैच देखा था आप दोनों में से कोई? जो मैम पाकिस्तान के साथ हुआ था? नहीं, श्रीलंका के साथ हुआ था। इन मुंबई महाराष्ट्र। नहीं, आप तो बहुत छोटे होंगे, आपको शायद याद ना हो, लेकिन जो फाइनल में 45 for 3 हो गए थे, सचिन तेंदुलकर आउट था 45 for 3, इनको 196 197 कुछ बनाने थे, राइट? अब बताओ सचिन तेंदुलकर जब आउट हो जाए तो इंडिया की कितना चांस बचता है भाई? नहीं बचता ना। Yes. तो स्टिल धोनी आया तभी, एंड धोनी का कूल टेम्परामेंट के बारे में सभी कोई जानता है। सो व्हाट डज दैट कूल टेम्परामेंट इज? क्या हम आप कर सकते हैं वो कूल टेम्परामेंट? यस, नो? कर सकते हैं डेफिनेटली। थोड़ा तो करते क्यों नहीं है? करने का एक ट्रिक है कि यू हैव टू हैव ए बिग विजन। उसके सामने क्या बिग विजन था कि अपने देश का झंडा जो ऊंचा लहराएगा, दैट इज ए बिग विजन वी ऑल हैव। लेकिन हमारे काम में भी क्या करें ताकि देश का झंडा लहराएगा, ये हम कभी भी आउटलाइन नहीं कर पाते। सब अपने अपने काम में अगर करें तभी देश का झंडा, वो क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट में झंडा लहराएगा बोला, हम क्रिकेट नहीं खेलते तो हमसे नहीं होगा बोल सकते थोड़े ही। वी कैन डू व्हाट वी कैन, वो अच्छे से करें, और वो करने के लिए वी नीड टू हैव ए बिग विजन। विजन का मतलब होता है जो कभी अपने लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं होगा, ताकि आप उसके पीछे भागो। कीप योरसेल्फ मोटिवेट। आपको लोग पागल समझें टिल यू आर ऑब्सेस्ड विथ योर ड्रीम कि ये मुझे करना है। आप सोचिए, जो किसने एरोप्लेन किसने बनाया? कौन से ब्रदर थे, उनका नाम मैं अभी मेरे दिमाग से निकल गया। जो ब्रदर थे, राइट ब्रदर। हाँ राइट ब्रदर। हाँ, जो भी ब्रदर्स थे, वो ब्रदर जो थे, अगर वो सपना नहीं देखे होते कि इंसान को पंछी जैसे उड़ाएं, पागल लोग उनको नहीं समझते, आज हम प्लेन में चढ़ते क्या? और एरोप्लेन बने हुए 100 साल के करीब कुछ हुआ है, 102 साल शायद हुआ है, उससे पहले तो था नहीं, बस 102 साल ही हुआ है। कोई अगर सपना नहीं देखता तो वो पॉसिबल कैसे होता? आज के दिन में अगर आप सपने नहीं देखोगे, पागल नहीं करार दिए जाओगे, तो ये कल को वो पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती। कोई सोचेगा तो ना कोई करने के लिए आगे बढ़ेगा। दैट इज व्हाट ए विजन इज। आप अगर स्टार का विजन रखोगे देन यू विल रीच टिल द मून। वही आपको चाहिए ना, मून तक भी कौन पहुंचता है? समझ में आया? तो हैव ए बिग विजन। देन मैनेजिंग टाइम, इसमें तो मैं सबको काट दूंगी, योगेश को तो मैं काट ही दूंगी, उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं करने आता। आज मैंने 5 मेल डाले थे कि 9 बजे होना है, 8:45 को मेल डाले थे कि 9:15 में शुरू होना है, फिर भी 9 बजे संदीप मुझे बताते हैं कि मुझे अभी मैं पहुंचा घर, 5 मिनट मुझे और लगेगा। तो टाइम मैनेजमेंट तो सबका घटिया है, ये तो मुझे पता है। अब देखिए, मेरी बात का बुरा ना, मैं बिफोर टाइम ज्वाइन किया था। एक्सक्यूज मी मैम, नहीं बिफोर टाइम ज्वाइन किए थे, बिफोर टाइम ज्वाइन किए थे, फिर भी आपको 5 मिनट लगेगा बोले थे। अरे बात की इतना दिल पे मत लो यार, मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? नहीं आप बोले ना, और को लेट अदर्स टू ज्वाइन। हाँ, तो ठीक है, मैं भी थोड़ा क्लियर हो हाँ, मैं जाए। कॉन्टेक्स्ट सेट कर रही हूँ कि क्या होता है अगर ऐसा होता है तो 2 मिनट 3 मिनट में कोई फर्क पड़ता है क्या? सवाल तो ये है ना, 2 मिनट 3 मिनट में फर्क पड़ता है क्या? तो एक कंपनी का मैं एग्जांपल देती हूँ, जो अभी अभी मेरे ग्रैंड मास्टर जो है, ग्रैंड मेंटर जो है, उनके ट्रेनिंग में मैं और उमेश जी थे।
तो उन्होंने बताया कि कोड ऑफ ऑनर, एक मतलब हम जो भी काम करते हैं ना उसमें हम कोड रखें, मतलब एक चीज को दो लोग दो तरह से समझ सकते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना होता है कि टाइमलीनेस का मतलब क्या होता है। तो 10 बजे आप ऑफिस में आ जाओगे, ये था कोड ऑफ ऑनर, मतलब टाइमलीनेस मेंटेन होगा, ये था। तो उसमें से एक ने समझा कि 10 बजे तक ऑफिस में उसको होना चाहिए, डेस्क में बैठ जाना चाहिए, ठीक। दूसरे ने समझा कि 10 बजे जो मीटिंग है उसमें उसको आज जब वो रेडी होके आ जाए तो वही टाइमलीनेस है। 10 बजे का कोई मतलब नहीं है, मीटिंग में वो पहुंचे तब टाइम उसका बनता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आप उसको डिफाइन करोगे। तो रीचिंग द ऑफिस बाय 10 एंड बीइंग एट योर डेस्क स्टार्ट वर्किंग इज व्हाट टाइमलीनेस इज। इसी तरह से आप डिफाइन करो अपना हर चीज को, तभी जाके वो बनेगा। अदरवाइज मैं समझो कुछ, आप समझो कुछ, दूसरे ने समझा कुछ, आपका बॉस समझा कुछ, कलीग समझा कुछ, कितने झगड़ा हो गए देखिए बिना बात का। कम्युनिकेशन इशू हुआ, राइट। देन कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल अभी सिखा दूंगी कि कैसे हुआ, और आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन बोलोगे यार नहीं होता ये। आपका वो कोई ना कोई परेशान करेगा, ये कंसिस्टेंसी है नहीं। चलिए, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि सभी को ये क्यों करें हम, व्हाई वी नीड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल करके हमको होगा क्या? झगड़ा हो रहा है, होता रहे, क्यों चलेगा? योगेश को तो चलता है यार, मेरा फैमिली इशू है तो होता रहे, कुछ भी होता रहे तो मैं क्या करूंगा। तो क्यों करना है तुमको? वो इसलिए करना है बिकॉज वी वांट टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल, जितनी जल्दी हो जाए वो ड्रीम है ना। या फिर और बेटर होगी। वो 5 साल बाद होगा तो भी चलेगा क्या? जब आपके साथ वाले सारे मैनेजर सीनियर मैनेजर हो जाएंगे और आपका फैमिली इशू था करके आप काम नहीं करोगे, चलेगा क्या वो? नो ना। सो यू हैव टू डू इट नाउ, दैट इज व्हाई। ठीक है। तो कौन लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया। हमें जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लर्निंग ए स्किल ऑलवेज। लर्निंग ए स्किल मतलब आज आपने एक कुछ उठाया, आज ही सीख लिया, ऐसा एक दिन में कुछ सीखा नहीं जाता, बट समथिंग यू लर्न टुडे, दैट इज व्हाट यू डू। ये लोग 365 डेज में आप इतना लर्न कर लोगे जो कभी कुछ लर्न नहीं करता, उससे आप कितने 365 टाइम्स ज्यादा जानोगे। ये हमारे ग्रैंड मेंटर जो है हमारे प्लेयर सिंगर साहब, वो बताते हैं। सो लर्न ए बिट एवरी डे, ये ग्रो करेगा नेक्स्ट लेवल पे, ऑब्वियस है। टाइमली एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस, जिस टाइम में जो चाहिए उसी टाइम में वो करना अच्छे से, जिसको आता है he will go to the next level। ठीक है। being a friend in need, जब जरूरत है किसी को और आप वहां पे खड़े हो हेल्प करने के लिए, that person will grow। एक कहानी सुनाती हूँ मैं। एक राजा ने ऐलान किया कि दौड़ का ऐलान किया, जो जल्दी आके, जो सबसे ज्यादा जल्दी आके महल में पहुंचेगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो जितने सारे यूथ थे उस राज्य के, सारे कोई दौड़ में पार्टिसिपेट किया। तो एक बंदा दौड़ रहा था, देखा उसके सामने एक नदी, छोटी सी नदी थी और कीचड़ हो रखा था, और उसका जो बुलक कार्ट था ना वो फंस गया था कीचड़ में। तो वो अगले किनारे तक नहीं जा पाता, उसके अकेले हो नहीं रहा था क्योंकि वो अनाज भरा हुआ था उसमें, और उसके वजन से वो और भी दब रहा था।
सो उसने, इस प्लेयर ने देखा, ये जो दौड़ लगा रहा था उसने देखा कि भाई क्या हेल्प करना है, वो अगर नहीं बेचेगा तो फिर क्या करेगा उसको पता नहीं, किसान है तो क्या करेगा। तो फिर इसने ना बोला कि चलो मैं अगले साल दौड़ में हिस्सा ले लूंगा, इस साल इसको हेल्प कर देते हैं। तो वो कीचड़ से उसको निकाला। ये स्टोरी तो काफी बार आप लोगों ने सुना होगा। राजा ने पूछा कि आपको लेट कैसे हो गया, तो वो बोला कि रास्ते में कुछ लोगों की मदद कर रहा था, वो जरूरी था मेरे दौड़ जीतने से। इनाम किसको मिला? जिसने हेल्प किया उसको। मकसद ही क्या था राजा का कि लोग चुस्त कितने हैं, और चुस्त होने के साथ ह्यूमन बीइंग, इंसान कितने हैं, उनको ढूंढना था। तो ये मिल गया ना, राइट। तो ये जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये जो लाइफ है, हमको जो मिला हुआ है, ये हमेशा ही हमसे एग्जाम लेते रहता है कि हम कितने चुस्त हैं और कितने इंसान हैं, राइट। अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स व्यू। अभी जितने आपने गिनाए प्रॉब्लम हो गया था करके, हो सकता है कि वो अगले पर्सन को भी कुछ कहना हो, उसके भी कुछ व्यूज हो जो आपको समझ नहीं आया, आप अपनी ही बताए जा रहे हैं। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि वो जो बंदे ने कुछ बोला है वो किस लिए बोला होगा, अगर ये आपके दिमाग में ये कैपेबिलिटी है, देन यू विल ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल। जो ऑप्टिमिस्टिक है, कितनी भी परेशानी है, कोई भी परेशानी इस दुनिया में बेमतलब का नहीं होता। हालांकि जब परेशानी आती है तो हम सभी कोई परेशान होते हैं, बट ये मान के चले कि कोई भी परेशानी जो आती है वो बिना मतलब नहीं आता। तो ये सोच के जो रखता है ऑप्टिमिस्टिक, हर किसी चीज में अच्छा, यहाँ पे क्या अच्छा हो सकता है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, हाउ कैन आई इंप्रूव अपॉन दिस, हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम दिस एंड ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल, ये पर्सन ग्रो करता है, राइट। कैन सी द अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी। अब लास्ट टाइम मैंने बताया था और अपना एग्जाम्पल बताया था कि एक टाइगर रिजर्व के चारों तरफ कुछ गांव थे जहां 3 महीने का ही खाना लोगों के पास होता था, बाकी सारे टाइम वो जंगल पे डिपेंडेंट थे, और वो टाइगर रिजर्व था और खुला था, फेंस्ड नहीं था। तो ये जंगल में कोर तक फेंसिंग अगर नहीं होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि अभी बाघ का एरिया आ गया। तो जाते थे और मारे जाते थे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि आप तो कुछ इनके लिए कुछ समाधान ढूंढो, सम अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ढूंढो ताकि इनको जंगल में जाना ना पड़े। सो कौन ये चैलेंज लेता? सो आई टुक दैट चैलेंज and I was there in the forest for 4 years, वो बाग वाला फॉरेस्ट। when I was there, वो illiterate ladies थे, उनको अल्टरनेटिव तो सिखाया, उसमें आप घुस भी नहीं सकते, रास्ता भी नहीं था। बट इन 4 years of time उन लोगों के पास इतना अनाज बन गया कि वो सेल करने लगे, रोड्स बन गए। वही लेडीज 17 अवार्ड जीते, इंक्लूडिंग वन फ्रॉम नरेंद्र मोदी 2013 में, तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और एक फार्मर कन्वेंशन हुआ था जिसमें इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, इनको चुन के दिया। मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये लोग 17 अवार्ड जीते। तो मैं सिखा सकती हूँ लोगों को इतना कि इलिटरेट भी महिला हो तो भी वो 17 अवार्ड ले सकते हैं। जो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, उनको तो क्या ही करवा सकती, राइट। एंड देन ये डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड में, हाँ कुछ सवाल है? आपने हाथ उठा, अच्छा ताली बजाई, अच्छा। सो इट इज, ये ताली बजाने के साथ साथ मेरा मिशन भी है योगेश। अगर आपको अच्छा लगा, देन वुड यू लाइक टू बी वन who gets trained and does this similar kind of work? आज देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी भूखमरी है बहुत सारे एरिया में, आप जानते हो। अगर मैं 4 साल वहां रह के अगर कर सकती हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है ना। क्या मेरे सर पे सींग उगे हैं जो मैंने कर लिया कोई और नहीं कर सकता है? नो ना। सो
यू कैन सी अपॉर्चुनिटी इन देयर। कोई भी बिलीव नहीं कर सकता था कि मैं कर सकती हूँ, बट सबने देखा कि व्हाट आई डिड, वी ब्रोक मध्य प्रदेश मस्टर्ड प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी। अल्टरनेटिव सोल्यूशन तो ढूंढे, मस्टर्ड प्रोडक्शन का जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ दिए। सो दिस मच यू कैन अचीव इफ यू हैव ए बिग विजन, राइट? सो आप भी एक बिग विजन बनाओ, एंड वो बना के आप कैसे देश का झंडा फहराओगे, that strategy I can give, provided you surrender to my strategy, right? Respected by teammates, किस कौन नहीं चाहता कि सभी कोई उनका आदर करे और रेस्पेक्ट करे, सभी कोई चाहता है, राइट? तो जो ऑटोमेटिक चाहते तो सभी कोई है, लेकिन जो ऑटोमेटिकली रेस्पेक्टेड होता है वही ग्रो करता है। सारे टीममेट बोलेंगे कि ये बंदा अच्छा है, इसके साथ काम करना अच्छा है, सो ही विल ग्रो। विनिंग रेस्पॉन्सेस, अभी जब आप रेस्पॉन्ड करते हो तो आप कैसे रेस्पॉन्स करते हो? अगर ऐसा कुछ रेस्पॉन्ड करो जिसमें आप का भी अच्छा हो और सामने वाले का भी अच्छा, that is called a winning response. And आप खुद का तो भरोसा करते ही हैं, अपने पास कुछ, इंसान के पास कुछ स्ट्रेंथ है तो कुछ वीकनेस है, ये मानते हैं आप लोग? स्ट्रेंथ के साथ वीकनेस है, सारे चीज का स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं हो सकता, राइट? तो जिसके पास स्ट्रेंथ है इस दुनिया में वही अच्छे लीडर्स हैं जो अपनी वीकनेस को समझते हैं और अपने से ज्यादा समझदार बंदों को वो रिक्रूट करते हैं अपने टीम में। एक्सपीरियंस का खाली गैप होता है, सो ही लेवरेजेस द अदर पर्सन कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ मिला के वो एक बिग विजन अचीव करते हैं। ये लोग आगे जाते हैं, राइट? अगर आप ये 10 स्ट्रेटेजी में से कुछ भी एक को लेके काम करना शुरू करो, देन यू विल ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल। और इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल की कोई परेशानी नहीं होगी इफ यू हैव ए मिशन इन माइंड आउट ऑफ दिस, राइट? सो अब आप कहाँ स्टार्ट करोगे, ये अपने अपने मर्जी है। 10 में से मैं तो नहीं बोल सकती, सो 10 में से एनी वन यू कैन चूज एंड यू कैन स्टार्ट देयर। अब क्या करोगे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए? अभी कुछ आपने बताया भी था, तो राइट, रीड, स्पीक एंड लिसन, राइट? राइट, रीड, स्पीक एंड लिसन, ये चारों होता है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। जो भी आप लिसन करोगे वो राइट करोगे, जो भी आप रीड करोगे वो आप स्पीक करोगे। समझ में आया? ये चारों आपकी जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए। मेरे के कैलेंडर की लिखोगे फिर क्या, बोलोगे क्या, पढ़ोगे क्या, बोलोगे क्या, सुनोगे क्या? कैलेंडर बना के रखोगे ना, अदरवाइज ये दिमाग में चलेगा नहीं, कैलेंडर बनाना पड़ेगा। सो 30 डेज का कैलेंडर बनाओ एंड रोज क्या पढ़ोगे, क्या लिखोगे, क्या सुनोगे, क्या बोलोगे, वो करो ताकि ये होगा। डिसाइड ऑन ए बुक, यही पढ़ना है आपको। स्पीकिंग ट्रिक्स, ठीक है? क्या स्पीकिंग ट्रिक्स आपको लेना है कि आप बड़ा लंबा सेंटेंस नहीं करना है, शुरू में आपको छोटे छोटे सेंटेंस करना है, राइट? यूज ओनली दोज वर्ड्स विच यू नो ऑलरेडी, कि इसका मतलब क्या होगा। जिसका मतलब नहीं पता है एंड स्टिल किसी को शो ऑफ करने के लिए आपने यूज कर लिया, तो देन द अदर पर्सन, उसको भी नहीं पता होगा और आप शो ऑफ करेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज से उसको पता चल जाएगा, तो वो आउटराइट आपकी पर्सनालिटी को ही रिजेक्ट कर देगा। सो आप फिर उसको फिर बढ़िया इंग्लिश बोलते रहो, आप पे वो भरोसा कभी नहीं करेगा। सो ये छोटा छोटा चीज माइंड में रखो, अदरवाइज यू विल गेट रिजेक्टेड फॉर लाइफ। एक बार आप रिजेक्ट हो गए ना, फिर दोबारा आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। सो डोंट डू दिस स्टुपिडिटी कभी भी। जो और सबसे बढ़िया इंग्लिश कौन सा है? जो इजी है, सिंपल है, राइट? सो उसको यूज करके बताइए। लंबा सेंटेंस मत बोलिए, आप भी खुद कंफ्यूज हो जाओगे।
छोटा सेंटेंस बोलिए, राइट। ये दो ट्रिक को रखिए दिमाग में। अब ये बात आती है कि आप जो स्किल सीख रहे हो, विल इट हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन? किसमें हेल्प होगा ऑर्गेनाइजेशन? जब आप अच्छे से रिपोर्ट लिख पाओगे, इंसाइट दे पाओगे, कन्वे कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। बॉस को कैसे हेल्प होगा? उसको सपोर्ट कर पाओगे, की कंट्रीब्यूशन आपका होगा, नेगोशिएशन में आप हेल्प कर पाओगे, पर्सपेक्टिव आप अच्छा दे पाओगे। वो कुछ सोच रहे हैं, आप दूसरा पर्सपेक्टिव ले आ पाए। अकबर बीरबल की स्टोरी पढ़ी है कभी? अकबर बीरबल की स्टोरी पढ़ी है योगेश? यस मैम, बहुत सारी है, पर बहुत सारी है, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अकबर कम्स विथ ए पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, बीरबल उस पर्सपेक्टिव के अलग कुछ एक और पर्सपेक्टिव देते हैं। ये खूबी है। तेनालीरामा की स्टोरी भी वैसे ही है। तो ये जो स्टोरीज हैं, ये खूबी है कि पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज है। पर्सपेक्टिव इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सुपर बॉस कौन है? बॉस का बॉस, राइट। हाउ ही विल बी हेल्प्ड विथ व्हाटएवर यू आर लर्निंग, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं डेडलाइन के लिए। वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अगर आप कहीं बीच में नौकरी छोड़ गए, कोई उनका आपका बॉस अगर बीच में नौकरी छोड़ गया तो उनकी जगह कौन लेगा, ये चिंता रहती है उनको। तो आप अगर सीख रहे हैं तो क्या उनको आप दिखाई दे रहे हैं ऑल्टरनेटिव, ठीक है। और वो डील करते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जो आपके ऑफिस के बाहर कोई है, उसके साथ बात करने के लिए एक बंदा चाहिए उनके अलावा कोई। तो आप अगर सीख रहे हैं वो स्किल, उससे अगर हेल्प हो जाए, he will be happy। स्ट्रेटेजी डील करते हैं वो। So if whatever you are learning adds, contributes to his strategy, then he will be helped। अब कलीग्स कैसे हेल्प होंगे? मान लीजिए आपको सीख रहे हैं, दूसरे कलीग को कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो वो जलेंगे और फिर आपके अगेंस्ट में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे नहीं। So why to induce that kind of behavior? आप उनको भी कैसे हेल्प कर सकते हो? मान लीजिए कि कोई काम है, टीम में करना है, सबको अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है। नाउ आपने अपना काम कर लिया, आपके पास टाइम है, तो दूसरा थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, यू कैन गो एंड हेल्प हिम। कर सकते हैं, ये कुछ सीखे होंगे तो, राइट। आप वो डिपेंडेबल पर्सन हैं जिसके पास मुसीबत में बंदे आ सकते हैं। अगर आप स्किल सीखने से गो टू पर्सन बनते हैं, देन यू विल बी रेस्पेक्टेड, राइट। कलीग्स विल बी हेल्प्ड। हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। कोई आप कितना सीखा है भी तो भी नहीं सीख पा रहा है, तो हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो काम तो कंप्लीट करना है ना, विदाउट शोइंग कि आपने किया। आप ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके कलीग का नाम हरि है, आप ये बोल सकते हैं कि हरि ने ये काम कर दिया, थोड़ा सा मैंने सपोर्ट किया तो उसने कर दिया। अगर ये बोलेंगे ना, हमेशा ही उसका एडमायरेशन, रेस्पेक्ट आपके लिए रहे। कोहेजन का मतलब होता है टीम में एक से ज्यादा लोगों के साथ आपकी कैसे बनती है। वो जो आप सीख रहे हैं, क्या उससे आपकी टीम का कोहेजन बढ़ रहा है? ये अगर हो रहा है, ये 4-5 चीजें, तो आपको कोई नहीं रोक पाए सीखने में, बोलने में, कम्युनिकेट करने में। लोग आपके पास आएंगे, भले ही आप कैसे भी हिंदी बोले, कैसे भी इंग्लिश बोले। तो इसके लिए आपको क्या करना है? नोइंग योरसेल्फ। सबका मेरा तरीका, आपका तरीका, संदीप का तरीका, उमेश का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता है। तो हम चारों अलग अलग प्राणी हैं, 4 ह्यूमन बीइंग हैं, अलग अलग जगह में पैदा हुए हैं, अलग अलग चीज पढ़े हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस से बड़े हुए हैं। और हमारी लाइफ भी बहुत ही पैरेलल है, बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन एक चीज कॉमन है, कम्युनिकेशन स्किल। तो उसके लिए आप क्या करोगे? नोइंग योरसेल्फ।
तो कैसे नो करोगे खुद के लिए? अभी जितना मैंने बताया, क्या उनके लिए हेल्प हो रहा है? उनके लिए हेल्प करने का जो एटीट्यूड है ना, वो भी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। एटीट्यूड डिफाइंस पर्सनालिटी, राइट? तो हाउ इज योर एटीट्यूड? कैसे पता चलेगा? आप अगर बताओगे अभी टुवर्ड्स वर्क कैसा है आपका एटीट्यूड, टुवर्ड्स लाइफ क्या है, मतलब एक वर्ड में अगर मैं पूछूं हाउ इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, तो आप क्या बोलोगे? बोलो। बोलो। वर्क हार्ड। हार्ड। टुवर्ड्स लाइफ? एंजॉय लाइफ। नहीं, एंजॉय लाइफ अभी क्या है? अभी आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ? हाँ, अभी क्या है आपका, वो पूछ रही हूँ। नहीं, ज्ञान मत देना। लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। responsibility, yeah, responsibility, yes. Towards family? लव टू ईच अदर। अच्छा, लव है फैमिली में, म्यूचुअल लव है, या फिर ये आइडियल सिचुएशन है? अभी कैसा है फैमिली के साथ, या फिर फैमिली के प्रति? देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑनेस्ट रहेंगे ना, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव। बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? आपका अपना ही, राइट? और सराउंडिंग, जो आसपास जो सराउंडिंग है उसके लिए क्या है आपका, क्या मन में आता है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? सराउंडिंग कैसा है? पॉजिटिव, ऑलवेज डिमांड। डिमांडिंग। तो इससे क्या पता चलता है, देख रहे हैं? कोई भी, संदीप कैन यू टेल कि योगेश का जो, सनी का जो लाइफ है, हाउ इट इज? ये तो आई थिंक थोड़ा मतलब प्रेशर वाला लाइफ हो रहा है ना। प्रेशर वाला, अच्छा। हाँ, So, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इटसेल्फ ये प्रेशर, हार्ड प्रेशर है। हाँ, म्यूचुअल लव ठीक है, बट वो पूरा लाइफ का एंजॉय देखिए तो 40% के आसपास रहेगा, मतलब 60% थोड़ा टेंशन में जाता है मेरे हिसाब से, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन। हाँ, नहीं, कोई नहीं, मतलब मैं परसेप्शन देने के लिए बोल रही हूँ, आपका ओपिनियन तो था नहीं ये। यस यस। मैंने आपको पूछा कि आपको क्या लगता है, तो आपने बस बोला है, नहीं आप ये तो आप नहीं बोल रहे, जजमेंट नहीं दे रहे, ठीक है? Yes. तो योगेश, नाउ यू सी कि एनीबडी कैन वट एवर यू से। आपने कभी अभी कोई स्टोरी नहीं बताई थी संदीप को? यस मैम। जितना स्टोरी आपका है वो सिर्फ मुझे पता है, संदीप को कुछ नहीं पता है, बट स्टिल ही कुड सेंस कि 60% आपका लाइफ काफी टेंशन में है, राइट? यस। समझ में आया? सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने आपका एग्जाम्पल लेके बताया ताकि आप जल्दी से इसको चेंज कर पाओ, राइट? देखिए, ये जब तक आप हार्ड बोलोगे तो क्या हार्ड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आपको लग रहा है कि लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये दोनों में तो कॉन्ट्रडिक्शन है, टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स फैमिली। एक में रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हो एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को म्यूचुअल लव बोल रहे हो, अगर तो यहाँ पे भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे लग रहा है। एंड सराउंडिंग डिमांडिंग है। जब इतने परेशानी में, अब ये लव कहाँ जाएगा जी? ये भी कभी कभी आप परेशान हो जाओगे, क्रंच हो जाओगे तो ये भी चला जाए, राइट? सो दैट इज व्हाट हैबिट स्ट्रेंथेन्स क्रेडिबिलिटी। अब ये क्रेडिबिलिटी, अब देखिए, तो जब आपकी नई शादी हुई हो, घर में नई दुल्हन आई हो, बहुत प्यार लेके वो आई होती है, राइट? और आप जो है सिगरेट फूंक फूंक के जो है उसके सामने, क्योंकि आपको आदत थी सिगरेट फूंकने की, ठीक है? तो उसको सिगरेट के जो धुआं है वो नहीं अच्छा लगता दुल्हन को, वो आपको तो काफी पसंद करती है, बट सिगरेट का धुआं नहीं पसंद करती। तो नाउ
व्हाट हैपेंस, और किसी किसी को पीने की आदत है, नाउ व्हाट हैपेंस, योर हैबिट्स, आप जो सिगरेट पीता है और जो शराब पीता है, ये तो हैबिट में चला गया। ऐसा कोई आ गया है, उसको नहीं अच्छा लगता है बोल के छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है, राइट? सो थिंक मोर अबाउट दैट। तो व्हाट हैबिट्स यू वांट टू स्ट्रेंथन। अब वो नेगेटिव की बात छोड़िए, थोड़ा सा पॉजिटिव में आते हैं। हैबिट लेकिन एस्टैब्लिशेस योर क्रेडिबिलिटी। तो हो सकता है कि आप में दो एक नेगेटिव हैबिट है, तो व्हाट अबाउट योर पॉजिटिव हैबिट्स? इसमें से क्या कोई पॉजिटिव हैबिट आपके है? टाइमलीनेस, रेस्पॉन्सिवनेस, प्रोएक्टिवनेस, परफॉर्मेंस। क्या आपके ऑफिस में इसमें से कोई एक पॉजिटिव चीज आपके कैरेक्टर में दिखता है लोगों को? किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है? यस, नो? परफॉर्मेंस। अभी तो आपने मुझे लास्ट टाइम बताया कि कुछ परफॉर्मेंस का गड़बड़ी चल रहा था। For short or for small job, my colleagues appreciate my effort to do. Small jobs means small tasks. Yes, ma'am. Small tasks. तो बड़ा टास्क अगर हो जाता है तो they don't appreciate. Is that what you are trying to say? Sorry, ma'am. बड़ा टास्क स्मॉल जब तक है तब तक एप्रिसिएशन है. When it becomes bigger task, then they don't appreciate. Is that what you are trying to say? Yes, maybe. None for bigger responsibility. इसमें से कुछ पता चल रहा है सनी? See, I wrote because I wanted you to see कि आप जो बोल रहे हो मैंने सिर्फ वही लिखा ना? लिखा कि नहीं लिखा? मैंने आपसे पूछ के लिखा. Now you cannot say कि मैंने मन से लिख लिया. Now can you see something here? जहां पे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा बंदा वही काम करने की कोशिश करता है रिपीटेडली. I don't know whether you do that, but आप हमेशा स्मॉल टास्क में ही रह जाते हो. आप वो करेज जुटा ही नहीं पाते हो फॉर बिगर रेस्पॉन्सिबिलिटी. सिंस यू आर नॉट एबल टू टेक बिगर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रिकॉग्निशन नहीं होता और लोग आपको खिचखिच करते हैं. जस्ट ओनली ऑन दिस बिकॉज यू सेड कि इसी में आपको एप्रिसिएशन मिलता है. बल्कि आप तो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी एप्रिसिएशन दे सकते हैं कि आप टाइमलीनेस पे वो कर सकते हैं आप आसानी से. रेस्पॉन्सिवनेस, जब भी कोई आपको मैसेज करे व्हाट्सएप मैसेज, जवाब तुरंत दो. इफ दैट इज ए क्वेश्चन यू कैन डू दैट. प्रोएक्टिवनेस, मैं ये कर दूंगा, मैं ये हेल्प कर सकता हूं. दैट इज व्हाट प्रोएक्टिवनेस इज. यू कैन डू दिस. आपने ये तीनों पे कोई एप्रिसिएशन लिया नहीं. आपने खुद बोला आपको परफॉर्मेंस पे एप्रिसिएशन मिला है, वो भी स्मॉल टास्क पे, बिगर रेस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं. कैन यू सी वेयर यू वांट टू इम्प्रूव? और कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, अलावा आपके माइंडसेट की. नहीं करना चाहोगे तो कौन आपको करवा पाएगा? एंड यू आर अप अगेंस्ट एन इनविजिबल वॉल. काफी दिनों से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप अपने सामने एक वॉल रखे हो जो इनविजिबल है, लेकिन आप उससे डरते रहते हो. आपने वो हाथी की बात स्टोरी भी सुनी होगी. एक हाथी, छोटा बच्चा जब था तो उसके पैर में ना वो बांध के चेन, लोहे का चेन बांध के रखते थे. ठीक है, वो काफी कोशिश करता, तभी तो बहुत स्ट्रांग होता है वो बंदा. काफी कोशिश किया, नहीं हो पाया. 1-1.5 साल के बाद वो कोशिश करना भी छोड़ दिया. अब उसके जो माउथ होता है ना, वो एक सिंपल
रस्सी ही बांध देता है उसको, कहीं किसी पेड़ पे बांधता भी नहीं, खाली रस्सी एक बांध देता है उसके पैर में और वो कहीं नहीं जाता, सोच के कि वो तो बंधा हुआ है। कैन यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये इनविजिबिलिटी, इनविजिबल बंदिश है अपने ऊपर जो आपने लिया हुआ है, उसके बियॉन्ड वो कुछ सोच ही नहीं सकता, कोशिश भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका प्रायर एक्सपीरियंस वो था। वो हम में से 90% लोग और हम में से कोई भी कभी कभी कोई हमको रोकने वाला नहीं होता है, फिर भी खुद से रुके हुए रहते हैं। लिमिटिंग बिलीफ बोलते हैं उसको, राइट? वी कैन डू ए लॉट, बट वो लिमिटिंग बिलीफ ऐसा है, लिटिल बॉयज बोलते हैं हमारे ग्रैंड मास्टर साहब, वो हमको रोक के रखता है। दिस इज व्हाट यू ओनली टोल्ड, राइट? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्शन एनहांसेस डिपेंडेबिलिटी। अगर आप कहीं पे एक्शन करोगे, प्रोएक्टिव रहोगे ना, किसी को बोलोगे मैं कर देता हूं ये काम, चलो तुम्हारा, ठीक है, तो उसका वो सोचेगा ना अगली बार जब भी काम आए तो वो थोड़ा सा टाइट भी चल रहा होगा तो भी बोलेगा नहीं मेरे पास तो सनी है, वो थोड़ा सा हेल्प तो कर ही देगा। जब आप डिपेंडेबिलिटी किसी का बढ़ाते हैं ना, ऐसे बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं कि आप अपना काम छोड़ के उसका काम करने लग गए, ऐसा नहीं, बट व्हेन यू आर प्रोएक्टिव, लोग आप पे भरोसा करने लगते हैं। भरोसा का मतलब होता है एडमायरेशन, रेस्पेक्ट एंड ग्रोथ। कोई नहीं रोक सकता। डू यू डू दिस? अब देखिए, व्हाट क्रेडिबिलिटी यू वांट टू अर्न। अब आपके पास मोटिवेशन भी होना चाहिए ना कि भाई दूसरे का काम मैं क्यों करूं? मुझे 1000 लोग बोलते हैं बस दूसरे का काम क्यों करना, अपना काम करो, काम खत्म करो, अपने काम से काम रखो। मुझे भी सुनने को मिलता है, लेकिन क्यों करते हैं वो काम? Who you want to be? आप कौन बनना चाहते हो? एडमायरेशन लेना चाहते हो ना पक्का? रेस्पेक्ट जीतना चाहते हो ना पक्का? रेस्पेक्टेबल होना चाहते हो ना पक्का? दैट इज व्हाई वी डू। हाउ यू विल रीच देयर? अभी तक मान लीजिए कि आपका वही नेचर रहा कि भाई नहीं करना है किसी का काम, अपना ही काम करना है, देन यू नीड टू चेंज ना। क्या करोगे तो चेंज होगा। दैट यू ऑल्सो यू नीड टू नो, फिगर आउट। जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन क्या करोगे, तो कैलेंडर बनाओ कि क्या क्या करोगे। इसके लिए भी आपको बनाना पड़ेगा कि कौन से हैबिट पे करोगे, या फिर खुद को ऑब्जर्व करते रहोगे, राइट? व्हाई यू वांट व्हाट यू वांट, जो भी आपको चाहिए वो क्यों चाहिए, दैट व्हाई। चाहिए भी कि नहीं चाहिए, 4-5 क्वेश्चन पूछो। ये जितना आपको यहाँ पे काम करना पड़ जाएगा, क्या विल दैट बी वर्थ इट? जो आपको चाहिए इतना इतना करने का कोई बनता है कि नहीं बनता है? इफ योर व्हाई इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, कि क्यों चाहिए आपको, आप कर नहीं पाओगे, ज्यादा देर तक ये मोटिवेट आपको रख नहीं पाएगा। सो बी वेरी क्लियर ऑन योर व्हाई, एंड उसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। संदीप, यू आर विथ मी? यस संदीप? अरे हो कि नहीं भाई? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, हाँ हाँ बोलते रहिए बीच बीच में, नहीं तो मुझे लगेगा सो गए। अच्छा, द फोर्थ वन इज परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, परसेप्शन। ये एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, कोई बोलेगा आधा खाली है, कोई बोलेगा आधा भरा हुआ है, दोनों ही एक ही है ना। आप अपने सराउंडिंग को थोड़ा सा संभालो, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है? परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। आप कैसे उसको परसीव करते हो, उससे रियलिटी बनती है। नाउ आपको दूसरा एक इंस्टेंस देती हूँ। मान लीजिए कि 2 बंदों में झगड़ा हो रहा है, आप बगल में खड़े हो, तो आप सुन रहे हो वो पहला बंदा क्या बोल रहा है, दूसरा बंदा क्या बोल रहा है।
तो आप कुछ फॉर्म कर रहे हो, कभी कभी ओपिनियन की तरह, हाँ यार ये सही बोला गलत बोला, ठीक है, आप झगड़े में शामिल हो, वो झगड़ा चल रहा है और आप तीसरे मंजिल पे चढ़ गए, अभी आप झगड़े का हिस्सा नहीं हो, राइट। आप देख रहे हो कि दोनों में झगड़ा हो रहा है, लेकिन यू आर नॉट हिस्सा एनी मोर, आप डिस्टर्ब भी नहीं हो उससे, फिफ्थ मंजिल पे चढ़ गए, आपको और भी ज्यादा नहीं दिखा, 14वां मंजिल पे चढ़ गए, अभी तो लोग भी नहीं दिखेंगे कौन झगड़ा कर रहा है, एंड आपका ध्यान वहां से हटके खुले आसमान पे जाएगा, पंछियों पे जाएगा, झगड़ा पे नहीं जाएगा, राइट। दुनिया में कोई रियलिटी चेंज नहीं हुई, सिर्फ आपका दिमाग को 14वीं मंजिल पे जाना था, टू सी अल्टर्ड रियलिटी, और कुछ रियलिटी आपको दिखेगा, उसके लिए आप फिजिकली कहीं से भाग नहीं पाओगे, यू हैव टू टेक योर माइंड टू 14वां मंजिल, राइट। तो जब ऑफिस में आसपास बैठे हो, बॉस सामने बैठा है चिल्ला रहा है, राइट, that is your reality. How can you take yourself out to 14वां मंजिल at that point? That differentiates your perception. आप ऐसा सोचो कि उसने मुझे बोला ही नहीं, immediately you will start thinking in a different manner. आपका वाइब्रेशन ही डिफरेंट हो जाएगा, तो सामने वाला बोलेगा यार मैं इसको इतना भला बुरा बोल रहा था, ये तो कुछ बुरा ही नहीं मानता है, कितना भला बनता है, इमीडिएटली इट चेंजेस। आप कोशिश करके देख सकते हो कल भी, इट इमीडिएटली चेंजेस, बट जरूरी है कि आपको 14वां मंजिल पे जाना है, राइट। इफ यू कैन गो, यू कैन डू दिस कल भी। डू यू एग्री थिंग्स कैन बी डिफरेंट देन व्हाट यू थिंक? परसेप्शन का ये है, आपकी आंखें जो देख रही है हमेशा सच नहीं हो सकती, फिल्मों में आपने कई बार सुना होगा, राइट। दैट इज व्हाट ब्रिंगिंग यू एन एक्सपीरियंस। जो भी हो रहा है आपने उसको नेगेटिव सोचा है भले ही, बट दैट इज ब्रिंगिंग यू एन एक्सपीरियंस। वो हुआ क्यों आपके साथ, दूसरे किसी के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको उस चीज की जानकारी और उसके बारे में सोचने की जरूरत थी, सोच के उसको प्रोसेस करने की जरूरत थी। अब आप उससे डूब सकते हो डिप्रेशन में, या फिर खुद को वहां से निकाल के, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, इसलिए आया होगा ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ, सोच सकते हैं। क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी। अब जैसे देखिए 15 दिन पहले मेरा पोर्टफोलियो जो मैं पिछले 5 साल से बना रही थी, दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम मी। आप बोलो कि मुझे कैसा सोचना चाहिए? मेरा विजन मिशन है कि आई वांट टू impact 1 billion people in 139 countries, creating a multi-billion dollar enterprise. मैंने बोला था विजन अपने हाथ के आसपास नहीं होना चाहिए। So in that line I had created, जिसमें मैं कम से कम नहीं तो भी 139 कंट्रीज के उतने सारे जनता को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती थी। जो मैंने 5 साल पिछले बनाए थे काम, वो मेरे से ले लिए गए। हाउ शुड आई हैव थॉट? आपको क्या लगता है कैसे? बुरा, राइट? बट इसका पॉजिटिव क्या है जानते हैं? मैंने बिलियन का सोचा है, शायद मल्टी बिलियन का मेरे नसीब में हो काम करने का, इसलिए वो गया मेरे से। मेरे जो ग्रैंड मास्टर हैं बोलते हैं 8 बिलियन बिलियनियर्स, वो सपना मेरे में भी है। तो यूनिवर्स ने मुझे वो मौका दिया ना, मैं छोटे से रह जाती, छोटे पे रह जाती, बड़ा बनने का मुझे मौका आया ना, राइट? सो ये गया एक बात। अभी रिज्यूमे पे आते हैं। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को कुछ दिन पहले बताया था, आपका रिज्यूमे कैसा है? सीवी, जब आप जॉब चेंज करने की सोचते हो, रिज्यूमे पहले आपके सामने होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक ठाक, राइट? तो वो ठीक ठाक रिज्यूमे क्या है? 4-5 पॉइंटर मैंने बताए थे। आपका रिज्यूमे 1 पेज में भी आ जाना चाहिए। आप उसमें 5 अपने स्ट्रेंथ को
आउटलाइन करना चाहिए, जो भी 5 स्ट्रेंथ आपके हैं आउटलाइन होना चाहिए उसमें। 5 जगह अगर आप अप्लाई कर रहे हो, 5 टाइप के डेजिग्नेशन पे अप्लाई कर रहे होगे, हर कहीं आपको एक डेजिग्नेशन मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। सो यू हैव टू कीप रेडी 5 काइंड्स ऑफ रेज्यूमे। ये है क्या आपके पास? ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है? दिस इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। आर यू डेवलपिंग द राइट कॉन्टैक्ट? कैसे पहुंचोगे जहां पे भी आप अप्लाई कर रहे हो? जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर ए डायरेक्ट इंटरव्यू। आपकी स्क्रीनिंग वहां पे नहीं होती है, आपका बहुत लेवल पे स्क्रीनिंग होती है। यू वुड बी रेफर्ड बाय अनदर पर्सन, तब जाके आपको लिया जाएगा एक्सपीरियंस बंदे। ठीक है, तो कांटेक्ट आपके हो रहे हैं क्या? कोई जानता है आपको? यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर अपने आप, राइट? और ये इंडस्ट्री डेटा है जिसमें ये बोला जाता है कि जब भी आप कंप्लेन करते हो आपके दिमाग में, तो आप 20% प्रोडक्टिविटी लेवल पे रहते हो और आप नौकरी ढूंढ रहे होते हो। नौकरी अगर आप ढूंढ रहे हो तो जो फ्रेशर है उसको 3 से 6 महीने में नौकरी मिल जाती है, लेकिन 6 से 12 साल का एक्सपीरियंस जैसे ही हो जाता है तो आपको 3 से 5 साल लगते हैं। और 3 से 5 साल अगर आप 20% प्रोडक्टिविटी पे अगर काम करते हो तो आपके पोटेंशियल का क्या होता है? कैसे आप एस्टेब्लिश करोगे अपना पोटेंशियल, राइट? कम्युनिकेशन स्किल हुआ। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? 80% कम्युनिकेशन स्किल, राइट? ना आप खुद कर रहे हो ना करवा पा रहे हो अपना काम। 20% प्रोडक्टिविटी मतलब आपका काम 100 है, उसमें से सिर्फ 20 ही आप कर रहे हो। कौन देगा आपको प्रमोशन? अपने यहाँ पे भी तो नहीं देगा। और आप झगड़ा किस बात का कर रहे हो? क्योंकि आपका बॉस या फिर आपका कलीग कुछ बोल दिया, इसीलिए आप गुस्से में। इसका भी एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बंदा किसी कारण से छोड़ दिया नौकरी, ठीक है, और कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में गया। 10 साल बाद अपने बॉस से मिला कहीं एक जगह पे, तो बॉस बोला, अरे अच्छा चलो चलो चाय पीते हैं। तो साथ मिलके वो लोग चाय पीने गए। बातचीत जैसे ही हो रही थी तो ये दूसरे बंदे ने बोला कि आपकी वजह से मैं वो कंपनी छोड़ा था। वो शॉक में आ गया उसका बॉस। बोला मैंने क्या कर दिया था? तो ये बोला कि आपने ये बोला था। अरे यार उसी टाइम मुझे बोल देता यार, तो फिर मैं माफी मांग लेता। देखा, कम्युनिकेशन अगर आप स्टॉप कर देंगे, ये हाल होगा। अच्छा खासा वो दूसरे बंदे को पता ही नहीं है आपको क्या, आप किस बात का खुन्नस खा रहे हैं, राइट? तो कम्युनिकेशन बनाए रखिए। आपस में बातचीत करने से ही कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो जाता है, राइट? और मैंने एक मार्केट रिसर्च किया था जिसमें मैंने पता किया था कि लोगों को किस बात की खुन्नस होती है। तो लेफ्ट में आप देखिए वर्क प्लेस रिलेटेड, जो सैलरी नहीं बढ़ी, प्रमोशन नहीं हुआ, किसी के साथ झगड़ा हो गया। लेफ्ट साइड में 4 5 6 7 ही है। राइट साइड में है ये वर्क प्लेस रिलेटेड है ही नहीं। पत्नी के साथ झगड़ा हो गया तो वो वर्क प्लेस पे उसका असर पड़ा, ठीक है। वाई पे अगर आप ज्यादा घुसोगे तो आपको पता चलेगा। प्रोएक्टिव नहीं बना क्योंकि वो फियर ऑफ फेल्योर से डरता था। उसका बहुत बड़ा इमेज था, इसीलिए किसी के साथ शेयर ही नहीं करता था। आप जैसे डिस्क्राइब किए ना आपके लाइफ को, उस जिसमें 60% टेंशन है, वो टेंशन लेके वो काफी दिनों तक चलता रहा। प्रोडक्टिविटी पे तो असर होगा ही। फ्रेंड्स के साथ दुश्मनी हो गई क्योंकि वो फ्रेंड्स काफी आगे बढ़ गए थे और ये नहीं बढ़ पाया। फ्रेंड्स बड़े घर के थे, यहाँ के थे, वहां के थे, उनकी अच्छी बन गई, मैं कहीं का नहीं रहा। सेल्फ डाउट कुछ करते हुए ऐसे ही अत्यंत प्रपंच बहुत सारे मिले मुझे रीजन, जो वर्कप्लेस से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको माइंडसेट ठीक करना चाहिए। जब मैंने किया था ना, ये राइट साइड में देखिए एक ट्री बनाया था। लोग पूरा वो एक ट्री का
पत्ता वत्ता फल फूल फुला देते हैं नेगेटिविटीज, राइट। स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, मान लीजिए कि आपको इंटरव्यू कॉल आ गया, राइट। अब आप कैसे पोजीशन करेंगे खुद को? सबसे पहले आप एक सटल असर्शन करेंगे कि बंदा पूछ रहा है सामने वाला कुछ क्वेश्चन, देन यू हैड टू बताना कि आपका ये काम था अच्छे से, क्योंकि वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करेगा। सेकंड, वो अगर आपने सही से जवाब दे दिया तो दूसरा और थोड़ा सा क्वेश्चन करेगा जिससे आपको गुस्सा आए। तो आपका अभी कन्विक्शन दिखना चाहिए कि आपने जो भी किया वो इसलिए किया, आपके पीछे एक वाई था। वहां पे भी आपका वाई काम आएगा कि आपने जो काम किया वो यूं ही नहीं किया, आपको मिल गया करके नहीं किया, आपका मन था, आपका ये मिशन का पार्ट है, इसलिए आपने किया। थर्ड है सुइटेबल ऑब्सेशन। मैंने अभी बोला ना, लोग आपको पागल समझें तभी जाके आपको रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट मिलेगा। अभी शायद पागल ही बोले, बट दैट डजंट मैटर। इंटरव्यू में अगर आप पागल करार हो गए ना, साबित हो गए, बढ़िया है सबसे, ठीक है। तो इंटरव्यू में साबित करना कि ये ऑब्सेशन आपका क्यों है। जैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जाके जंगल में अकेली 4 साल में कैसे रही, तो बहुत सारे लोगों को तो बिलीव ही नहीं होता है कि रही होगी, राइट। तो मुझे बताना पड़ता है ना ऑब्सेशन कि क्या ऑब्सेशन था भाई, कि जंगल में जहां पे बाघ मार देता है जाके रहे थे तुम, राइट। चौथा, अब आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करोगे कि तुम अगर रिक्रूट मुझे कर लेते हो तो तुम्हारा बड़ा काम हो जाएगा मेरे से। इसको बोलते हैं सबलिमिनल ओरिएंटेशन। और पांचवा है सिनर्जाइजिंग कन्वर्सेशन। जैसे ही वो हो गया, उसको चला भी आ जाएगा, काम का बंदा है भाई, इसको रिक्रूट कर देते हैं, तो अब वो आपकी पार्टी में आ गया। आप उसको बताओ कि मुझे अगर तुमने लिया है तो तुम्हारा भी भला होगा, ये राइट, कंपनी का फायदा होगा। चौथे स्टेज में था, इसमें उसका भला होगा था, सिनर्जाइज कर रहे हो। ये 5 स्टेज आप करोगे इंटरव्यू। कैसे करोगे वो बताएंगे जब आप ट्रेनिंग में आ जाओगे। 7 एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप ग्रोथ। फर्स्ट तो अभी मैंने बताया कि एक स्किल, कोई भी स्किल है आप में चलेगा, वो स्किल को आप और डेप्थ में ले जाओ। सीखो भले ही वाइड, जिसको वर्टिकल बोलते हैं, लेकिन डेप्थ में जाओगे तो इम्पैक्टफुल होगी। सेकेंड है, यहाँ पे एक ड्राइवर मिला था जिसको पाइथन और ये सब पता था, ठीक है। तो उसने भी सीखा ना, वो पाइथन सीखा था लेकिन ड्राइवरी कर रहा था जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाती, राइट। हाईली प्रोडक्टिव, हाईली प्रोडक्टिव का बहुत बोलबाला है क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। 80% प्रोडक्टिविटी पे अगर कोई मिल गया बंदा, कंसिस्टेंटली चलता है, तो वो बहुत ही रेयर कमोडिटी है, वैसा बंदा मिलना बड़ा मुश्किल है। थर्ड है हैप्पीली एंगेज्ड। काम करते हो मर मर के रो रो के नहीं, यू डू बिकॉज यू लव योर वर्क। ये लोग भी रेयर कमोडिटी में आते हैं। आपको कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं चाहिए, अगर आप प्यार करते हो अपने काम से, आपका जो ऑब्सेशन है ना अपने काम के लिए, ये सबको दिखेगा। हसल कंसिस्टेंटली। जैसे मैंने अभी बोला कि 1% आप इंप्रूवमेंट रोज करो, तो वो 10 मिनट्स का एक काम कोई भी पकड़ लेना, 10 मिनट करना। लेकिन मैं आपको चैलेंज देके बोल सकती हूँ कि ये 10 मिनट निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए इफ यू आर नॉट हैबिचुएटेड टू इट, ठीक है। तो अगर निकालते हो रोज, देन ऑल्सो यू स्टैंड आउट इन ए क्राउड। हंग्री फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आप जहां भी हो एक दिन ऐसा बनना चाहते हो जो आप अभी रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, राइट।
वो उसको बोलते हैं कैटरपिलर स्टेज से बटरफ्लाई बन जाते हैं। बटरफ्लाई में कोई कैरेक्टरिस्टिक कैटरपिलर का नहीं होता। दैट इज व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो सीखो उसको करो इम्प्लीमेंट एंड देन टीच, सब होता है। जब आप सिखाओगे ना बंदे किसी को, देन ओनली योर ब्रेन गेट्स रीवायर्ड। ठीक है, होपफुल ऑफ बेटर टाइम, एक्सपेक्टेंट रहोगे, हमेशा ही पॉजिटिव सोचोगे, मतलब अच्छा टाइम आएगा। ऑनेस्ट अबाउट एफर्ट्स, कितना कर पाते हो और कितना नहीं करते हो उसके लिए किसी और को क्या बोल रहे हो छोड़ो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, राइट। एंड बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत सारे लोग बहुत टाइप के हैं, आई डोंट, आई कांट, आई वांट टू डू, हाउ कैन आई डू, आई एम गोइंग टू ट्राई, आई कैन डू इट, आई डिड इट। इसमें से कौन स्टेज में आप हो? सक्सेस तो आई डिड इट जो बोलता है उसी को मिलता है। आप किस स्टेज में हो पता कर लो, और आपका काम भी वैसे ही हो। ये जितने टाइप है ना उतने टाइप का स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी, राइट। तो जो मेरा कोर्स है वो 3 डे कोर्स है। पहले जो मैंने पहले बताया था, जो ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको आउटलाइन पता चलेगा। फिर मैं आपको वो 21 या 30 डेज का एक चैलेंज दूंगी। ठीक है, ये दोबारा हो गया क्या? हाँ, और ये इस यहाँ पे मैं आपको एक स्किल सिखाऊंगी, वो है रिसोर्सफुल माइंडसेट। माइंडसेट की बात अभी तक हम कर रहे थे। मैंने बोला कि आपको एक दूसरा डिग्री लेना पड़ेगा, नहीं बोला ना, हमेशा माइंडसेट, सोचने, थॉट प्रोसेस की ही बात की। तो ये जो रिसोर्सफुलनेस है, जहां पे आपको कोई रिसोर्स नहीं दिख रहा है, रिसोर्स क्या होता है? टाइम, मनी एंड HR, लोग, इसमें से कोई नहीं दिख रहा है, वहां पे आपको क्रिएट करना, वो होता है रिसोर्सफुल माइंडसेट। ठीक है, तो और उसके साथ फिर आप क्या करते हो इसमें, कैसे आप खुद को मोटिवेटेड रखोगे, पावर ऑफ विद इन, तो उसका प्रोसेस भी बताती है। जैसे सुबह उठ के ही आपका मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एक्सरसाइज होगा। कैसे आप बिग टीम, अभी तक मैंने बताया, बिग टीम आप कैसे बनाओगे। जो वर्जन 10 है, आज के दिन में आप शायद वर्जन 1 पे हो या फिर वर्जन 0 पे हो। तो जो ड्रीम आपने देखा है ना, वो शायद वर्जन 0 के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है वर्जन 10 को पॉसिबल। तो आप जब तक धीरे धीरे चढ़ के वहां नहीं जाओगे, वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर, तब तक तो नहीं बनेगा। लेकिन उसका इंटेंशन आप आज डाल सकते हैं कि आपको वो बनना है। कॉन्फ्लिक्ट जब आता है तो आप गुस्सा में नहीं आके, जो बंदा आपसे अलग कुछ बोल रहा है वो प्लान बी है, तीसरे ने कुछ अलग बोला है, प्लान सी है। तो ये डाइवर्जेंट मॉडल को अपने जिंदगी में अपनाओ। तो इसमें रिजल्ट क्या होगा? आप अपना डे एक डिफाइंड एक्सपेक्टेशन से शुरू करोगे, दूसरे का यूनिकनेस भी रिकॉग्नाइज करोगे। भाई आप यूनिकली पैदा हुए हो तो दूसरा भी तो यूनिकली पैदा हुआ है ना। आप अपना यूनिकनेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, दूसरे का यूनिकनेस क्यों भूल जा रहे हो? और ये स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि ताजमहल पहले ही दिन नहीं बना था। पहले दिन जिस दिन ईंट रखी गई थी उस दिन कोई बोल सकता था कि ये ताजमहल है? नहीं, बनने के लिए टाइम लगता है। बिल्ड कंसिस्टेंटली, जो बना उसको बिगाड़ो नहीं, उसी पे बनाते रहो। लेवरेज द स्ट्रेंथ इन अदर्स, दूसरे का, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। बड़ा काम अगर करना है तो आपको टीम की जरूरत पड़ेगी, और सारे स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है, सारे क्वालिटीज हमारे पास अकेले एक के पास नहीं होता। एंड कैसे होता है, कोई भी सोल्यूशन देता है तो ये पूरा एग्जैक्टली उस सोल्यूशन को मत फॉलो करके, थोड़ा सा ट्विकिंग करके कैसे हम नया सोल्यूशन बना सकते हैं, ये आपको माइंडसेट मिलेगा। माइंडफुलनेस आएगा इसमें। माइंडफुलनेस में क्या होता है, आप अपने माइंड को पहले कंट्रोल करो। ठीक है, वो बंदा कभी भी फ्री नहीं हो सकता जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है।
अब ये नहीं बोल सकते कि हम माइंड के कंट्रोल में हैं, हम माइंड को कंट्रोल कर लिया 100%। ये हमेशा ही ऑनगोइंग टास्क होता है। अभी आपने कंट्रोल किया, दूसरे मोमेंट में देखेंगे कंट्रोल में ही नहीं है, तो हमेशा ये करते रहना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? वो एक एनवायरनमेंट आपका ठीक करो। एक तो पहले एनवायरनमेंट इज बिगर देन यू। योगेश, आपको मैं बताऊंगी, योर एनवायरनमेंट इज बिगर देन यू। अगर वो गड़बड़ है ना, आप कितना भी सही हो जाओ यहाँ पे, वो गड़बड़ ही कर देगा आपको। सो मेक सम रूल्स अबाउट योर एनवायरनमेंट। कौन आके आपको कब डिस्टर्ब करता है, रूल बनाओ। Nobody can disturb you while you are in a webinar or you are reading something. That rule has to be there. Communicate करो। किसी को सुना है वो फोन नहीं लेते, कॉल नहीं लेते, ये उनका रूल है, कोड ऑफ ऑनर। आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, लेकिन कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे, फिर दैट रूल हैज टू बी देयर। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि बंदा कोई आपके सामने बहुत ही नेगेटिव आपको बोल रहा है, फिर भी अगर आप वो नहीं सोचे एंड देन यू स्टार्ट सेइंग कि कुछ पॉजिटिव बोल दिए, तो वो उस बंदे का भी परसेप्शन चेंज होगा इमीडिएटली। बोला था। सो दैट कम्स व्हेन you know that you are bigger than yourself. वो एक हायर सेल्फ है। भगवान है ना कोई हायर सेल्फ, और ये सब वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, भगवान तो है ना, मानते हो ना सभी कोई भगवान को, किसी ना किसी भगवान को मानते होंगे, राइट? वो हमारा हायर सेल्फ है। ये भी तो सुना होगा कि हम भगवान के बच्चे हैं, उसी सोर्स से आए हुए हैं। ये सुना है, नहीं सुना है? हम उनके अंश हैं, ये सुना है? अगर हम उनके अंश हैं तो हम ही भगवान हुए ना, है ना? सो अभी वो सब नहीं करके हम ये बोल सकते हैं कि वी कैन एक्सेस दैट सोर्स, दैट पावर। भगवान को जब भी हम प्रेयर करते हैं, हाथ जोड़ते हैं ना, हम एक्सेस करते हैं वो पावर, राइट? सो इंटेंशन, अटेंशन, एटीट्यूड, ये आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। ये मैं अपने ही बारे में बोल रही हूँ कि राजस्थान में 2 महीने में मुझे 44 लाख वुमेन का एन्यूमरेशन करना था। 2 महीने में 44 लाख, एक दिन में 25,000 करना था। ये हमने 2 महीने में कर दिया। कैसे किया? अकेले तो नहीं किया होगा। इसके लिए 12,000 लोगों को मैंने ट्रेन किया था। 2 महीने में ही ट्रेन किया, कैंप लगाए और कर दिया। ये भामाशाह प्रोजेक्ट था। ये मेघालय था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ 7 डिस्ट्रिक्ट थे, इसमें 239 कॉमन सर्विस सेंटर बनाने थे, और वो भी हमने कर दिया 2 साल के अंदर। और यहाँ पे मैंने डेटा कार्ड और वीसैट इंस्टॉल करवाया था, जबकि मेरा कोई बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं। ओनली आई कुड डू बिकॉज आई वाज सोल्यूशन फोकस। मैं सोल्यूशन ढूंढ रही थी। आपको बहुत टेक्निकल, बहुत ज्ञानी होने की नहीं जरूरत है, सिर्फ सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। हर सिचुएशन में मिल जाएगा। और वहाँ टेलीफोन डिपार्टमेंट के जो डीजीएम थे, तो बड़े बड़े लोग थे, वो बोले आपको ये सुझाई कैसे? मैंने वहां पे सिर्फ यही बोला था। सो इट वाज ए बिग विन फॉर मी। वो लोग जो सोच नहीं पा रहे थे, वो मैंने सोचा। व्हाई? बिकॉज अरे मेघालय तो ऐसे उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉडबैंड काम नहीं करता, ऐसे सोच के बैठे थे। कौन सा चीज काम करेगा वो सोच नहीं रहे थे। सोचने से तो उनको भी आ जाता ना। उसके बाद जब भी वो दिल्ली में कोई मीटिंग होती, मुझे बुलाते। अब मैं कौन? मैं एक अदना सा कर्मचारी वहां पे, जस्ट गेव ए वे आउट। और वो आपके डेजिग्नेशन से नहीं आता, आपके माइंडसेट से आता है। आप मेरे ऊपर वाइस प्रेसिडेंट बड़े बड़े लोग थे, उनसे ये बात नहीं बनी। जब नहीं बनी तो उन्होंने बोला कि जाके बात करके देख, तो मैंने ये सोल्यूशन निकाला, राइट? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक क्राइसिस हुआ था, तभी मैंने वो ट्रैक किया था। डेटा एनालिस्ट करके एक पैकेज है, जो बड़े बड़े टेक्नीशियन, कंप्यूटर, इन लोगों को आता है, उससे डेटा लेके मैंने ट्रैक किया था। सो एक्सेल का जो मैंने आज अनाउंस किया था कि एक्सेल के कुछ टिप्स आपको दे दूंगी, तो यहाँ पे मैंने एक्सेल से किया था। लिया तो था दूसरे, कैप्चर किया था डेटा दूसरे सॉफ्टवेयर से, वहां से इंपोर्ट करके एक्सेल में लाके एनालिसिस किया था। जैसे इलेक्शन के टाइम पे ट्रैक होता है ना, ऐसे वैसे ही ट्रैक किया। सो इट वाज अनदर थिंग।
अनदर एक्सपीरियंस, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का तो मैंने बताया, ये मेरे कलीग्स हैं जो मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप एक बिग सोल्यूशन फोकस, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बिग सोल्यूशन फोकस रहिए। ये मेरा चौथा है जिसमें कंटिन्यूअस अपग्रेड की जरूरत है। एक चीज है प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट। प्रोसेस आप करोगे तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। प्रोसेस में क्या करना है, रोज सीखने की बात बोल रही हूँ। रिजल्ट में क्या है कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले हो करके एस्टेब्लिश हो जाओगे, राइट, समझ में आया। बट कभी कभी क्या होता है, आपसे भी ज्यादा कम्युनिकेशन वाला कभी कोई आ जाएगा। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की लेते हैं, कभी भारत जीतता है, कभी पाकिस्तान जीतता है, कभी कोई देश जीतता है, कभी कोई देश जीतता है। हमेशा ही तो जीतता नहीं ना एक देश। इसका मतलब थोड़े ही है कि उसकी तैयारी में कोई कमी थी। जीतना हारना कभी यहाँ कभी वहां होगा, बट आप एक प्रो हो एस्टेब्लिश होने के लिए आपको वो प्रोसेस करने की जरूरत है, राइट। तो ये प्रोसेस कैसे करोगे, आप अपने अगेंस्ट में हमेशा कंपटीशन में रहोगे। आज जितना सीखा कल कितना सीखें, इसको बोलते हैं प्रोसेस। हमेशा प्रोसेस में रहना। ये दूसरा एक कलीग कुछ बोला। और चौथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, डेलीगेट एप्रोप्रिएट। जो जब आप लीडरशिप पोजीशन में पहुंच जाते तब आपको जरूरत पड़ती है आप 80% प्लानिंग करें, 20% एग्जीक्यूट करें। आज के दिन में योगेश शायद आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे 80%, बट जैसे ही आप लीडरशिप पोजीशन में जाते हो आप सोचोगे ज्यादा, करोगे कम, या फिर 80% प्लानिंग करने के बाद जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको 20% टाइम की ही जरूरत पड़ेगी। तो कैसे करोगे, रोज रोज तो कुछ ना कुछ काम रहता ही है। सो यू हैव टू डेलीगेट। आपके टीम में दूसरा कोई है तो उसको डेलीगेट करोगे। कैसे डेलीगेट करोगे, बिना ट्रेनिंग दिए। सो एक लीडर का काम होता है टू ट्रेन हिज सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड जो भी है, फिश को वो स्विम करने वाला सारा काम सिखाएगा और बर्ड को फ्लाई करने का। अगर आप उल्टा कर दोगे अपने टीम में, जिसको स्विम करना आता है उसको फ्लाई करने बोलोगे और जिसको फ्लाई करने आता है उसको स्विम करने बोलोगे, तो ये भयंकर, ना वो कर पाएगा ना वो कर पाएगा। फिर काम आप पे आ जाएगा, आप फिर कंप्लेन करोगे कि इन लोगों से तो कोई काम होता ही नहीं। कौन आपको बताएगा कि आपको देखना नहीं आया कि कौन बर्ड है और कौन फिश है, राइट। सो दिस इज ए लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक। आप जानते हो कि बंदे में क्या करने की क्षमता है, राइट। दिस इज योर टास्क। और हमेशा ही सेल्फ इवैल्यूएशन करो। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब होता है अपने टीम का इवैल्यूएशन। आप महान काम कर रहे हो और आपकी टीम बड़ा घटिया काम कर रही है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। कुछ अच्छा हो रहा है तो आपकी जितनी क्रेडिबिलिटी है उनकी भी है, इसको करो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब देखो कि आपने किसको ट्रेनिंग नहीं दी। ट्रेन एंड एक्नॉलेज कंट्रीब्यूशन। किसी ने कुछ किया तो बोलो। अगर कुछ कहीं पे फेल्यूर हो गया तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कुछ अच्छा हो गया तो दूसरे को क्रेडिबिलिटी दो। ये करने का जो काम है वो है डेलीगेट एप्रोप्रिएट, राइट। ये मैंने किसी को ऐसे ही सिखाया था, जो लड़की कुछ बस बीकॉम की थी 6 साल पहले और उसने कुछ सीखा नहीं था। उसको मैंने 2 साल में ट्रेन किया एंड शी इज नाउ नॉट हेडिंग बट शी इज द वर्चुअल हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट, जहां पे मैं हेड रही, राइट। सो एक सिंपल सी लड़की जो जब आई थी तो ये येलो ड्रेस में थी, बोली मुझे कुछ नहीं आता, उसको सिखाया एंड शी इज नाउ, यू कैन सी द बॉडी लैंग्वेज डिफरेंस, कॉन्फिडेंस लेवल, राइट। और इसमें आपको एक बहुत अच्छा मिलेगा ये सीखने से कि आप 4 दिन काम करके भी सारा काम कर सकते हो। 4 days वर्क वीक हो जाएगा। दिन में 4 घंटे भी अपने लिए निकाल सकते हो। 80% टाइम इन प्लानिंग कैसे दे सकते हो यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। और लास्ट वाला जो है
कोर्स वो है जॉयप्रेन्योरशिप। जो भी स्किल है उसको मोनेटाइज, उससे पैसा कैसे कमा सकते हो। नौकरी की बात नहीं कर रही, नौकरी के अलावा ये है कुछ भी आप करते हो दैट यू कैन मोनेटाइज। प्लस मेरे पास स्किल है फेसबुक ऐड करने का, क्लिक फनल में लैंडिंग पेज, जो एक लैंडिंग पेज बना दो तो $1000 लेते हैं। $1000 का मतलब कितना पैसा हो गया, 80,000 हो गया। वो स्किल है मेरे पास जो मैं सिखा सकती हूँ। ईमेल मार्केटिंग, इसका दबदबा बहुत है। कानवा सिखा सकती हूँ, कॉपी राइटिंग सिखा सकती हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर सकती हूँ। आजकल बहुत डिमांड है ये सब का। इसमें से कुछ भी आपको करना है तो आई कैन टीच यू। अलावा इसके, ये तो डिजिटल स्किल्स हैं, अलावा इसकी कोई भी स्किल है, उस स्किल को आप कैसे अपग्रेड कर सकते हो उसका स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, राइट। एंड व्हाट डू यू लर्न एवरी वीक? डेली इंस्टेंट फिक्स। अभी भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। अभी आप मेरे कोर्स में भी आ गए तब भी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो आप 3 क्वेश्चन अपने आप से करना। हाउ डू यू सी योरसेल्फ? इसको रियलिटी चेक बोलते हैं। हाउ डू पीपल सी यू? इसको रेजिलियंस बोलते हैं। हाउ इज योर विजन? उसको रेंज बोलते हैं। और इसका मतलब है कि आपको आना चाहिए सेल्फ कैसे मैनेज, हाउ टू मैनेज सेल्फ, हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू मैनेज टाइम। ये तीनों चीज आपको आना चाहिए। और ये मैं क्यों कर रही हूं? ये भारत बहुत साल पहले पूरे धरती का ये ट्रेनिंग सेंटर होता था। ये फिर से ये ट्रेडिशन एस्टेब्लिश हो रहा है, गुरुकुल का ट्रेडिशन, ठीक है। तो उसमें ये डिजिटल तरीका, ये मेरे पहले मेंटर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, ये उनके मेंटर है जिनका पहला कोर्स मैंने कंप्लीट किया है। और ये उनके साथ वाले दूसरे एक मेंटर है। और ये अभी जो मैंने बताया जो हमारे ग्रैंड मेंटर हैं, ये सारे मेंटर्स के मेंटर हैं। और ये 12 लोगों से मैं सीखते रहती हूँ। उमेश जी भी यहाँ पे हैं, ये भी सीखते रहते हैं, मैं भी सीखते रहती हूँ। तो ये 12 लोगों से हम सीखते रहते हैं। इनका अगर अलग अलग से आप कोर्स लें तो आपको लाखों में आ जाएगा, राइट। तो वो सब सीख के हम फिर से दे रहे हैं, क्योंकि आप उनका डायरेक्ट कोर्स सभी कोई को अफोर्डेबल नहीं होगा। सो व्हाट एवर दे टीच वी लर्न एंड देन एक्सचेंज, ठीक है। ये अभी हाल में हुआ था एक ट्रेनिंग जिसमें इनके साथ मेरा ये डायरेक्ट हॉट सीट बोलते हैं इसको, हॉट सीट में आई थी मैं, राइट। तो ये प्रूवन जर्नी है, इसमें कुछ ये मेरे कुछ और क्रेडिबिलिटी है जिससे मैं ले रही हूँ। कनाडा भी मुझे भेजा गया था। ये एक बंदे हैं जिसको मैंने बांधवगढ़ में सिखाया था, जो अभी सीईओ हैं वहां के कंपनी के। ये हमारी कंपनी को मिला था कुछ अवार्ड। ये मेरे मिशन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो अभी कमिंग बैक टू कि आप कैसे आ सकते हैं और भी बहुत सारे एरियाज हैं आप कैसे आ सकते हैं इसमें। ये अगर आप देखेंगे ये $5,000 का है, जितने सारे मैंने अभी बताया कोर्सेस, बट द रिटेल प्राइस इज 14,999, ठीक है। अगर आप अभी इसी वक्त, क्योंकि ये वेबिनार में ही ये प्राइस देती हूँ, अगर आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे $197 पर कोर्स पड़ेगा आपको, ठीक है। और फिर जो मेरा जो 30 डेज वाला हैंड होल्डिंग है, और ये लाइफ लॉन्ग, एक बार आप ले लेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग आपको मैं एड्रेस करते हैं, बुला के आपको दी हूँ ना ये ट्रेनिंग, राइट। आप मेरे ग्रुप में जो ट्रेनिंग मिल रहा है वो ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, राइट। सो टुडे इट इज 5,999 ओनली, अगर आप ले लें ये प्राइस में तो, right? Any question? That is done. Any question out here? करना है नहीं करना है?
want to do, don't want to do. पहले ही मैंने बोला है, टाइम अगर आप गंवा देंगे ना, मुझे 12 साल लगे थे ये सब समझने के लिए. So everybody, whoever is not taking this, आप टाइम आपके पास नहीं रहेगा करने के लिए. आप खुद से सीखोगे ना, 60 साल तक सीख जाओगे, या फिर 12 साल मुझे जैसे लगे थे वैसे आप अगर वो देने के लिए रेडी हो, देन आई डोंट हैव एनीथिंग टू से. बट आप टाइम अगर बचाना चाहते हो और ये लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो, देन यू कैन टेक इट राइट नाउ. यस संदीप, you can unmute. Sunny, you have to commit yourself today. Take some himmat. Yes ma'am, I will let you know. Actually मैं डिनर कर रहा था. ठीक है मैम, मैं सुना हूँ पूरा अभी. My family is waiting for dinner. नहीं ये बाद में तो ये ऑफर नहीं रहता ना संदीप. Yes. This offer is for today only. Otherwise आपको $197 पे लेना पड़ेगा. अच्छा ठीक है मैम. तो अभी तो मैं यही बोल रही थी ना कि गिव मी 90 मिनट्स. अभी आपने मुझे 90 मिनट्स दिया नहीं. सनी कहीं भाग गया. टेक ए डिसीजन टुडे यार. मुकेश, आपसे परिचय नहीं हुआ, आप बाद में आए. कैन वी गेट इंट्रोड्यूस्ड? मुकेश, आर यू देयर? चले गए. सो ये कम्युनिकेशन गड़बड़ नहीं है सनी एंड संदीप? यस मैम, मैं एक्चुअली डिनर कर रहा हूँ. मैं सुनाऊंगा आपका पूरा जो चीज है. ठीक है, मैं आपको कंफर्म करता हूँ. ओके, व्हाट अबाउट यू सनी? यू कैन ना वीडियो ऑन करो अपना. अरे वीडियो तो ऑन कर सकते हो ना, या फिर वो भी डर लगता है? थैंक यू उमेश जी. आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा बात कर लें आपके साथ भी. उमेश जी, यू आर हियर? Anyways, so that's it. संदीप, मैं वेट करूंगी आपके रेस्पॉन्स का. राइट? थैंक यू एंड गुड नाइट.